Morning, everyone. We were discussing about catalysis, and we discussed how catalysis takes place in case of heterogeneous medium, like when catalyst is in different state and reactants are in different state. So we discussed the methodology by which a catalyst increases the rate of reaction. For example, it reactants getting absorbed on the surface of catalyst, and then there on the surface of catalyst the reaction takes place, and after reaction the products get dissolved from the surface of the catalyst, and catalyst is regenerated after this chemical reaction. So in this way catalysis takes place. Now important topic is which is important for examination purpose, और बहुत बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है. These two characteristics of important characteristics of catalyst: activity, selectivity and specificity. Three properties जिनको हम specific characteristics भी कह सकते हैं किसी भी कैटलिस्ट के लिए. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. तो फर्स्ट इज एक्टिविटी. एक्टिविटी का मतलब है कि वो किस एक्सटेंट तक अपने मतलब एक रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर सकता है. तो द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट मींस the you can say the efficiency of a catalyst to increase the rate of reaction. तो generally 10 raised to the power 10 times तक reaction rate increase होता है if we use catalyst in a particular reaction. For example, ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हो टू फॉर्म वाटर, इट इज टेकिंग प्लेस. Otherwise, it is not possible if we mix hydrogen and oxygen gas in just a container without any catalyst. Place these two gases these gases in the form of a mixture for many years, because otherwise they are not reacting with each other. But if we react them in the presence of a catalyst platinum, then the reaction takes place to a large extent, up to 10 raised to the power 10 times reaction rate बढ़ जाता है, and they react to form water. Okay, तो दिस इज और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें आप एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस, जैसे आप एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप डेली लाइफ में देखते हो, फोटोसिंथेसिस, वेयर क्लोरोफिल इज एक्टिंग और सनलाइट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, यू कैन से. विदाउट देम नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, तो कैटलिस्ट take part in a chemical reaction and they increase the rate of reaction to such a large extent. Even आपकी बॉडी में ही जो डाइजेशन प्रोसेस है, in the absence of those enzymes, एक सिंगल मील आपको पता नहीं कितने 100 years लग जाएंगे उसके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में. क्लियर? बट देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स which digest proteins, carbohydrates and fats in our body. Okay, so all these enzymes are actually biocatalysts. Okay, so catalyst activity means the efficiency of a catalyst to increase the rate of a reaction, and it generally depends on कि वो किस हद तक, किस extent तक absorb कर सकते हैं अपने ऊपर materials को. Clear? Next is selectivity. Selectivity का मतलब है कि एक particular catalyst एक पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा. मींस जैसे सपोज पहले आप एग्जांपल देख लो, लेटर ऑन विल डिस्कस द डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू फाइंड these two reactants, carbon monoxide and hydrogen gas, when we combine these two gases and we are using if nickel catalyst, then product formed is methane gas. If we are using a mixture of copper and zinc oxide and chromium oxide, then we are getting methanol. And if we are using catalyst just copper metal, then we are getting methanol. तो methanol and methane, तीन different products बन रहे हैं by using different catalyst. इसका मतलब क्या है कि एक catalyst एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए रिएक्शन को डायरेक्ट करता है. तो द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज its ability to direct a reaction to yield a particular product selectively. ठीक है, सेम रिएक्शन में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. एक और एग्जांपल आपने लोअर क्लास 11th क्लास में पढ़ा है, इथाइन. व्हेन इथाइन इज reduced in the presence of nickel or platinum,
then ethane is formed, मतलब complete hydrogenation हो जाएगा. But if we are using Lindlar's catalyst, yesterday I also discussed that reaction कि हम उसमें poisoning कर देते हैं by using palladium catalyst की poisoning कर रहे हैं हम barium sulfate and quinoline या sulfur use करके. तो वहां पर वो रिएक्शन इथाइन तक, मतलब आपने कैटलिस्ट चेंज किया थोड़ा सा तो आपको रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गए. ठीक है, तो अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट डायरेक्ट्स अ केमिकल रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी. ठीक है, तो इन दोनों चीजों में एक तो थोड़ा सा बच्चों को ये मतलब रहता है कि एक्चुअल में एक्टिविटी का मतलब सिर्फ एनहांस करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और वो किस एक्सटेंट तक एनहांस करता है वो उसकी एक्टिविटी है. वो डिपेंड करता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, किस एक्सटेंट तक एड्सॉर्प्शन हो रहा है रिएक्टेंट्स का सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे. तो दैट विल डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. और सेलेक्टिविटी है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब सेम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हो आप, कैटलिस्ट चेंज कर देते हो तो यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ बुक में गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, बट इट इज स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी होती है कि अगर एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है तो और वो एक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो और भी किसी रिएक्शन में रेट को इंक्रीज करे. मीन्स स्पेसिफिक होते हैं जनरली जो कैटलिस्ट है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उस सब्सटेंस को आप एज अ कैटलिस्ट यूज कर. जैसे निकल है, इट इज nickel, platinum, palladium, they are used as catalyst to enhance the rate of hydrogenation processes, but they will not increase the rate of dehydrogenation या और कोई रिएक्शन. मतलब स्पेसिफिक होंगे एक पर्टिकुलर टाइप के कैटलिस्ट, एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को रेट को एनहांस करेंगे. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज स्पेसिफिसिटी. ओके, तो दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी, किस एक्सटेंट तक उसको एनहांस करना रेट को. सेलेक्टिविटी, रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड को डायरेक्ट करना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा. एंड स्पेसिफिसिटी, कैटलिस्ट and activate or enhances the rate of reaction only for a particular rate of reaction. A particular catalyst cannot increase the rate of some other reaction. Clear? तो in this way you can say that they are specific in nature. और बहुत ज्यादा highly specific जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है बायोकैटलिस्ट वो होते हैं. हर एक पर्टिकुलर डाइजेशन, जैसे स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए लाइक जो अमाइलेज वगैरह इस तरह के एंजाइम्स होंगे. प्रोटीन्स है तो उनके लिए प्रोटीएसेस होते हैं, लाइक पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज, दे एक्ट ऑन लिपिड डाइजेशन. सिमिलरली अगर शुगर को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, इन्वर्टेज एंजाइम इज देयर. अगर फर्मेंटेशन हो रहा है अल्कोहल्स फॉर्म होने के लिए शुगर का, तो जाइमेज एंजाइम. तो वेराइटी ऑफ एंजाइम्स आर देयर विच आर हाईली स्पेसिफिक फॉर, मतलब अगर आप इन्वर्टेज एंजाइम को किसी और शुगर की, मतलब शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, किसी और कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करवाओ तो वो नहीं होगा, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक. उतने हाई स्पेसिफिक नॉर्मल कैटलिस्ट नहीं होते. एंजाइम्स आर वेरी हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स रिएक्शन. तो इसलिए यहाँ एनसीईआरटी में स्पेसिफिसिटी टर्म यूज नहीं किया नॉर्मल कैटलिस्ट के लिए, इन्होंने एंजाइम्स के लिए यूज किया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंजाइम्स ही है अभी चैप्टर में. But still, if it is asked what is meant by specificity, so a particular catalyst can increase the rate of a particular reaction only. It cannot be used to increase the rate of many reactions. The different reactions में आप same catalyst use करके सोचो कि आप rate of reaction increase कर लोगे, तो that will not be possible. Next है shape selective catalysis by zeolites. Zeolites बेटा अपने अगर याद हो, वैसे आपको पी ब्लॉक चैप्टर जो 11th में था उसमें से कंपाउंड्स डिलीट हो गए थे. सीबीएसई ने लास्ट ईयर डिलीशन जो किया था उसमें से, तो देयर वर एक्चुअली सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें एक टाइप के पॉलीमरिक नेचर के होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स यू कैन से. दीज आर नोन एज सिलिकेट्स. सिलिकेट्स में SiO4 की यूनिट्स होती हैं एक दूसरे के साथ लिंक. नेटवर्क 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं सिलिकेट्स. और अब उन सिलिकेट्स में अगर हम कुछ जगह पे से सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम के एटम्स लगा दें, मींस few silicon atoms of silicates, if they are replaced by aluminum, then we get zeolites. Zeolites are naturally occurring material and chemically they are aluminosilicates of sodium, potassium or calcium.
एक सेकेंड, अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है जियोलाइट्स का तो M कोई भी मेटल हो सकता है, एंड साथ में मेटल के क्या होंगे, एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट्स AlO2 होल X, ये X मीन्स एनी नंबर ऑफ एल्यूमिन, ये जो AlO2 यूनिट्स के कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ जियोलाइट्स आर अकरिंग इन नेचर, एंड SiO2 silicate units number may be Y, X और Y may be any values, साथ में Z may be any number, और इसको भी आप N भी लिख सकते हो, water molecules. तो these are actually hydrated salts, ठीक है, एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऑफ व्हाट, एल्यूमिनोसिलिकेट्स कहते हैं इनको, एल्यूमिनोसिलिकेट्स. एंड मेटल क्या होगा यहाँ पे, दिस M मे बी सोडियम आयन, वैलेंसी उसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होगी, जो भी मेटल आयन है, सोडियम आयन इट मे बी, पोटेशियम आयन इट मे बी, और कैल्शियम. जनरली जो है इन तीन टाइप के कैटायंस के साथ ये आपको सिलिकेट्स मिलेंगे. तो सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स में भी देयर, पोटेशियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स भी होते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स भी होते हैं. तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ मेटल आयंस आर देयर प्रेजेंट इन these naturally occurring, or they may be synthesized also, and these are very useful materials because ये highly porous substances होते हैं. मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब आपने देखा होगा ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो सिमिलरली इनकी भी जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उनमें माइक्रोपोर्स होते हैं. एंड दीज माइक्रोपोर्स एक्चुअली, पहले तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट व्हेन दीज आर हीटेड इन वैक्यूम तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, एंड जहां जहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे वहां एम्प्टी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, ठीक है. और ये जो पोर्स हैं इसके अंदर, वो पोर साइज जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं. अप्रोक्सीमेटली 280 पिकोमीटर से लेके 760 पिकोमीटर तक की रेंज मिलेगी आपको इनके पोर्स की. तो इनके पोर्स में कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं. दैट इज व्हाई द नेम गिवन है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. मींस कुछ स्पेसिफिक रेंज साइज जो होगा 280 से 760 पिकोमीटर तक की रेंज में, वो ही मॉलिक्यूल्स इस जियोलाइट्स के पोर्स में फिट हो जाते हैं, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट. पेट्रोलियम की क्रैकिंग, हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करके उनके सिंपलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, या फिर आइसोमराइज करना, लॉन्ग चेन ऑफ स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग जियोलाइट्स एज कैटलिस्ट. और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है जियोलाइट्स का, दैट इज ZSM5. ZSM इज एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म है. दिस इज जियोलाइट सीव माइक्रोपोरोसिटी 5. मतलब इसमें पोर साइज को जो एक नंबर दिया हुआ है दैट इज 5. इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू कन्वर्ट एल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू पेट्रोल, ठीक है, बाय डिहाइड्रेटिंग देम. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनता है, दैट इज यूज्ड एज गैसोलीन. तो वेरी यूजफुल आर दीज जियोलाइट्स. और जियोलाइट्स का अगर यूज आपको याद हो तो हमने एक्चुअली some of these zeolites are used to remove हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए रेजिन्स बनाने में भी यूज होता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे आयन एक्सचेंज एब्जॉर्ब कर लेगा आयंस को. इसमें सोडियम आयंस है, सोडियम आयन से ये रिप्लेस कर देता है अगर वहां पर कैल्शियम या जो भी मतलब आपके मैग्नीशियम आयंस हैं वाटर के अंदर, तो वहां पर सोडियम जियोलाइट्स यूज होते हैं. इफ यू रिमेंबर हमने रिएक्शन भी किया था Na2Z लिख के, ठीक है, तो उसमें सोडियम आयन वाटर में चले जाते हैं और वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस जियोलाइट्स पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो जियोलाइट्स आर यूज्ड एज वेरी गुड सरफेसेस फॉर आयन एक्सचेंज रिएक्शंस टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, ठीक है. तो इनका मतलब बेसिकली जो अगर आपको एक टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. क्वेश्चन जियोलाइट्स के नाम से नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. शेप selective catalysis, that is a type of catalysis in which specific reactant molecules having specific shape and size can be absorbed on the surface of zeolites, because zeolites are microporous substances having a pore size
in the range of 280 picometer to 760 picometer, and which can absorb only specific substances which can be fit in the pore size of or cavities of the zeolites. ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनका साइज जो है वो उस पोर साइज की रेंज में आएगा. एंड केमिकली दे आर sodium, potassium or calcium aluminosilicates. If you want to write their general name, तो sodium, potassium और calcium के aluminosilicates हैं ये, जिसमें अदरवाइज जो सिलिकेट्स होते हैं वो SiO4 यूनिट्स होती हैं, उनमें सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस किया हुआ है कुछ जगह पे एल्यूमिनियम एटम्स ने. तो दे आर नेचुरली अकरिंग as well as they are artificially synthesized in laboratories, industries. Okay. So this is about normal catalyst. Now we'll discuss enzyme catalyst. Enzymes are actually globular proteins है. सारे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में, एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो कुछ मेटल एटम्स, मेटल आयंस या फिर कोई और सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, बट एंजाइमेटिक कैटलिस्ट जो हैं दे आर मेनली प्रोटीन्स. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर, क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं. बायो स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग, और वैसे भी आपको अभी चैप्टर है इस टर्म में बायोमॉलिक्यूल्स, वेयर यू विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स आल्सो. तो विटामिन्स एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन, प्रोटीन का एक टाइप है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है ये, एंड these are produced by living bodies. अपने आप हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं by the help of various exocrine glands, and these glands are present in different parts of our body. And ये जो हैं बेटा actually they are highly effective. जैसे normal catalyst up to 10⁻10 तक increase करते हैं rate of reaction, but for enzymes we can say that they increase the rate of reaction up to an extent of 10⁻20 times. और विदाउट एंजाइम्स हमारी जो जो रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हमारी बॉडी में, दे विल स्टॉप और दे विल बिकम सो स्लो दैट वी कैन नॉट सर्वाइव. तो हमारा सर्वाइवल जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइम्स का. ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं इनको, या बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं. सिंपली बायोकेमिकल की जगह आप बायो कैटलिस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो. एंड ये जिस प्रोसेस से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बायोकेमिकल रिएक्शंस को एनहांस करते हैं, उनकी स्पीड को, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस. कैटालिसिस मतलब प्रोसेस नेम, कैटलिस्ट इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. So many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells. Generally नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एंजाइम्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड. अभी अगर किसी की बॉडी में कोई पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, देन दीज एंजाइम्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स आल्सो. तो अब यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कुछ एंजाइम्स के, जैसे ये शुगर है नॉर्मल, जिसको हम सुक्रोज भी कहते हैं. दिस सुक्रोज इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड by the help of this enzyme invertase, and it gets hydrolyzed to form two molecules of glucose and fructose. Okay, glucose and fructose beta formula same hai. Abhi aap biomolecule chapter mein you will come to know what is the structural difference between glucose and fructose. And conversion of glucose, शुगर से पहले हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है, एंड फिर ग्लूकोज से जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. तो फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय दिस एंजाइम नेम्ड जाइमेज. तो यहाँ पर आप देखो हर एक ये जो बायोमॉलिक्यूल्स बायोकैटलिस्ट है, ये हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं. तो इन दिस वे यू कैन से दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बिकॉज अब इन्वर्टेज सिर्फ शुगर को ही हाइड्रोलाइज कर सकता है, ग्लूकोज को या किसी और, जैसे स्टार्च को अगर आप सोचो कि इन्वर्टेज हाइड्रोलाइज कर देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू वांट टू हाइड्रोलाइज स्टार्च तो आपको यहाँ पे डायस्टेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टेज नहीं कर पाएगा. तो दिस इज बिकॉज ईच एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स द रिएक्शन.
तो starch can be hydrolyzed to form maltose by using diastase enzyme. माल्टोज को फर्दर अगर हाइड्रोलाइज करना है ग्लूकोज बनाने के लिए तो ये माल्टेज एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, ठीक है. हियर दिस रिएक्शन maltose can be converted into glucose by using maltase. So similarly, variety of carbohydrates are there in our body, variety of proteins are there in our body which can be hydrolyzed. Hydrolyze का मतलब है कि इन polymers को छोटी units में convert करना, क्योंकि ये polymers हैं water के साथ react होंगे, क्योंकि जब तक ये smaller units में convert नहीं होंगे तब तक हमारी body डाइजेस्ट नहीं कर पाती है फूड को, ठीक है. तो दे आर ऑल डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, वेदर दे आर स्टार्च और ग्लाइकोजन है जैसे एनिमल बॉडी में, तो दे ऑल आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फर्दर ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म एनर्जी. क्लियर. इसी तरह से यूरिया का डिकम्पोजिशन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्जन है दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ यूरिएज. तो ऑल डिफरेंट एंजाइम्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी इन ऑर्डर टू एनहांस द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस. और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं अदरवाइज दे विल बी इम्पॉसिबल और वेरी स्लो. कितने साल लग जाएंगे इन रिएक्शंस को होने में. In stomach, the pepsin enzyme converts proteins into peptides, while in intestine, जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में. मिल्क को कर्ड में जो कन्वर्ट करने का काम है लैक्टोबैसिलाई एंजाइम, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को रिलीज करते हैं एक्चुअली वो एंजाइम. तो here this table is given where you will find different types of enzyme and their sources and the reactions on which they are acting on. Now this is again important, इसको भी important mark कर लो. Again 1 or 2 mark questions can be asked. Characteristics of enzyme catalysis. First of all, most highly efficient means just one molecule of enzyme can be, you can say, can catalyze 1 million molecules of reactant per minute. So they are highly efficient. क्योंकि एंजाइम्स भी नॉर्मल कैटलिस्ट की तरह वापस रिलीज हो जाते हैं और इतनी जल्दी रिलीज होते हैं ये रिएक्शन को एनहांस करके कि 1 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन है व्हाटएवर. दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ये मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन कर दिया है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर सकता है, उसके अलावा किसी और को नहीं. फॉर एग्जांपल यूरिएज कैन कैटेलाइज यूरिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया. अगर इन्वर्टेज है तो वो सिर्फ केन शुगर को ही हाइड्रोलाइज करेगा. जाइमेज है तो इथेनॉल फॉर्म होगा उससे, ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस से. तो दीज ऑल डिफरेंट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंजाइम्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज और पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही काम करेंगे. सपोज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर, इसी के रेंज में, मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, तो इसी रेंज में ये जो हमारे एंजाइम्स हैं दे वर्क एफिशिएंटली. अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो या बहुत ज्यादा हाई हो, इन दैट रेंज उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है. और पीएच रेंज भी एक्चुअली हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन ब्लड 7.4 के अप्रोक्सीमेट पीएच होता है, तो उस पीएच में ये बहुत अच्छे से काम करते हैं. अगर पीएच इंक्रीज हो जाए या बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत बेसिक हो जाए, देन ऑल्सो देयर एक्टिविटीज डिक्रीज. तो ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर की जो है 298 to 310 केल्विन है एंड पीएच रेंज 5 to 7 पीएच पे ये ऑप्टिमम वैल्यूज हैं इन एंजाइम्स के लिए. तो ये चीज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में नहीं है, उनके लिए पीएच रेंज इतना मैटर नहीं करती, वो किसी भी पीएच रेंज पे वर्क कर जाते हैं, बिकॉज बायोकेमिकल सिस्टम्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पीएच रेंज इंपॉर्टेंट होती है. तो ये एक डिफरेंस आप कर सकते हो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट में बायोकैटलिस्ट स्पेसिफिकली प्रोटीन्स हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आर जनरली मेटल आयंस और सम अदर कंपाउंड्स दे में बी. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आर नॉट सो एक्टिव और स्पेसिफिक नहीं है उतने ज्यादा, बल्कि ये बहुत ज्यादा इनकी एफिशिएंसी है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है नेचर में. एंड इतना ज्यादा टेम्परेचर और पीएच रेंज मैटर नहीं करती.
एक लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच में वो काम कर सकते हैं, बट एंजाइम्स कैन बी इफेक्टिव ओनली इन ऑप्टिमम पीएच रेंज एंड टेम्परेचर रेंज। क्लियर? अब जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल कैटलिस्ट को भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उनकी एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, जिनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। सिमिलरली एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी एनहांस करते हैं कुछ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स होते हैं एक्चुअली, एंजाइम नॉर्मली प्रोटीन्स हैं, और उन प्रोटीन्स के साथ एक आयनिक पार्ट, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो जनरली कुछ मेटल आयंस हो सकते हैं, सोडियम, मैंगनीज, कॉपर और कोबाल्ट आयन। ये आयंस क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर नोन एज कोएंजाइम्स। दीज आर एक्चुअली नॉन प्रोटीन पार्ट, जनरली मेटल आयंस, सोडियम, मैग्नीशियम। तभी हम कहते हैं ये आयंस जो है स्पेसिफिकली हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम भी मेटल आयंस का है। तो दीज मेटल आयंस एक्ट एज कोएंजाइम्स टू एक्टिवेट दीज पर्टिकुलर एंजाइम्स। एक एग्जांपल है जो हमारा अमाइलेज है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, तो वो सोडियम आयन की प्रेजेंस में कैटालिटिकली बहुत एक्टिव हो जाता है। तो सोडियम आयन इज एक्टिंग एज अ कोएंजाइम फॉर इन अमाइलेज। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। सिमिलरली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी उनकी प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी एक्टिविटी को भी मैम last topic is there are certain substances whose presence in our body can inhibit, और उनकी जो एक्टिविटी को वो कम कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे इंटरैक्ट विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम सरफेस। ठीक है, तो ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो एंजाइम, कई बार क्या होता है कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं बॉडी में, तो उनको ब्लॉक करने के लिए ड्रग्स, मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। तो दैट दीज ड्रग्स कैन एक्ट एज अ पॉइजन और इनहिबिटर्स फॉर दीज एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट है हमारा किस तरह से एंजाइम एक्ट करते हैं बॉडी में। उसी तरह से बेटा जैसे हमने नॉर्मल कैटलिस्ट की फॉर्म में किया, थोड़ा सा एक अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है। इस थ्योरी को हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। आप जैसे नॉर्मल कीज देखते हो ना, नॉर्मल की जो होती है उसके ऊपर कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं और दे कैन फिट इनटू अ पर्टिकुलर लॉक ओनली। ठीक है, तो लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं इसको, बिकॉज एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस होती है इन एक्टिव साइट्स पे, और इन एक्टिव साइट्स के थ्रू ही एंजाइम इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे भी उसी तरह की कोई एक्टिव साइट होनी चाहिए। ओनली दोज रिएक्टेंट्स कैन कंबाइन और कैन बी बॉन्डेड विद दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो इसीलिए ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सपोज ये इन्वर्टेज एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट इस शेप की है, तो सिमिलरली रिएक्टेंट जिस पर ये वर्क कर रहा है, केन शुगर सुक्रोज मॉलिक्यूल, उसकी एक्टिव साइट में ही ये इन्वर्टेज एंजाइम की साइट फिट हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट सिमिलर होंगी अगर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कहते हैं इसको जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम दोनों की एक्टिव साइट अगर सिमिलर टाइप की होगी, जैसे लॉक एंड की सिस्टम होता है, तो दैट एट दैट टाइम ओनली द बॉन्डिंग विल टेक प्लेस बिटवीन दीज टू। तो आफ्टर बॉन्डिंग इन दिस वे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और उसके बाद ये एंजाइम जब तक इससे बॉन्डेड है उस टाइम पे रिएक्शन यहाँ हो रहा है। सपोज हाइड्रोलिसिस चल रहा है, ये शुगर मॉलिक्यूल है तो ये टूट जाएगा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। देन आफ्टर फॉर्मेशन दिस रिएक्शन एंजाइम विल गेट सेपरेटेड आउट एंड प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड सेपरेटली। तो ये रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि 1 मिनट में कितने ही मॉलिक्यूल्स को ये इस तरह से अटैच होके रिएक्शन करवा सकता है। क्लियर? तो दिस इज नोन एज lock and key theory, in which enzyme and substrate molecules have specific active sites, एक दूसरे की complementary shape होंगी वो, and they fit into these active sites just like a key fits into a lock. Clear?
अब क्या होता है, अगर हम सोचेंगे कि ड्रग्स कैसे एक्ट करेंगी, जो ड्रग बनाई जाती है ना किसी एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, कि अगर एंजाइम ज्यादा रिलीज हो रहा है एक पर्टिकुलर बॉडी में, उसकी एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, वो ड्रग्स की एक्टिव साइट इसी तरह की बना देते हैं। तो वो ड्रग्स जाके खुद इस एक्टिव साइट पे बॉन्डिंग कर जाती हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं ये फिर वर्क नहीं करेंगे। मतलब सर्टेन ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है बॉडी में जिनका कई हार्मफुल इफेक्ट भी आता है, अगर वो ज्यादा इंक्रीज मतलब लेवल पे हो रही हैं, तो वहां पर फिर उनको बाइंड करना कंपल्सरी होता है। कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रीज, तो ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज यूज्ड एज फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम एज प्रोमोटर। कंडीशंस हैं 200 बार प्रेशर, ये कंडीशंस वगैरह जनरली नहीं पूछते, आपको जस्ट कैटलिस्ट का जो नेम है वो पता होना चाहिए। बट ये इनिशियली यूज होता था, नाउ डेज आयरन आयरन की जगह आयरन ऑक्साइड यूज कर रहे हैं विद पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। ओसवाल्ड प्रोसेस जिससे नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, उसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो वहां पर प्लेटिनाइज मतलब प्लैटिनम की प्रेजेंस जरूरी है, तो एस्बेस्टस की सरफेस पे प्लैटिनम को यूज किया जा रहा है। इन दिस फर्स्ट स्टेप दिस प्लैटिनम इज यूज्ड हियर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो हमारा है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और उसमें ये आपको पूरे प्रोसेस अभी करने की जरूरत नहीं है, पी ब्लॉक में दोबारा आएंगे आपको नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन। यहाँ सिर्फ आपको कैटलिस्ट का नाम याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस, फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मॉलिब्डेनम। एंड ये इनिशियल मतलब प्रीवियसली यूज होता था, बट यही पॉपुलर चल रहा है बुक्स में, बट नाउ इट इज मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड विद एल्यूमिना इज यूज्ड। ओसवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम यूज होता है, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करना है, दैट ऑल्सो यूजेस वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लैटिनम। Clear? So this is all about catalysis. Tomorrow we'll start with colloidal mixtures or colloids. Any doubt if you have, you can ask.